in Bhopal, in poll-bound Madhya Pradesh, there's a virtual poster war on the streets of the state capital. Behind me, you can see the poster of Mr. Kamal Nath saying that Sashakt Beti Samrit Nari, the Congress big promise of rupees 1500 for women per month and a gas cylinder at rupees 500. But just in the front of it, you will see the posters of the BJP. BJP promising the ongoing Ladli Behna Yojana of the BJP at rupees 1250 per month for women in the state, and with Mr. Big picture of Mr. Modi, the BJP promising that this amount will be increased to rupees 3000 in due course if the BJP comes again to power. Go across Bhopal and you will find these two kind of posters all over the city, some of them juxtaposed against each other, both the parties trying to woo the women in this freebies war, and also the BJP's promise of, you'll find also the many of these posters of the BJP promising a gas cylinder at rupees 450, which is 50 rupees lesser than what Mr. Kamal Nath is promising. Another key difference though between these two posters is that on the posters of the Congress, which the BJP is promising, which the BJP is highlighting in fact, that there is only the picture of Mr. Kamal Nath. The BJP says the Congress has no other leader except Kamal Nath. It is facing a paucity of leaders. While if you see the BJP's poster, you will see all their major leaders' faces on the poster. There is Mr. Modi, there is Mr. JP Nadda, Mr. Shivraj Singh Chauhan, Mr. Narendra Singh Tomar, Mr. Jyotiraditya Scindia, Mr. VD Sharma, Kailash Vijayvargiya. So in a way, BJP saying it has a galaxy of leaders in Madhya Pradesh, also throwing open the chief ministerial question that who becomes the chief minister if the BJP wins. But on the Congress poster, there is only one face and there seems to be no confusion on who will be the chief minister if the Congress wins. Who will be able to woo the woman for this freebie war, freebie poster war, I would rather say, on the streets of Bhopal, we would know on December the 3rd. I am joined by Madhya Pradesh Congress spokesperson Mr. Anand Jat. आनंद जी पूरे भोपाल में घूमे तो दो तरह के पोस्टर का तरफ फ्रीबी वॉर लगता है, कांग्रेस का एक तरफ, कमलनाथ जी का एक तरफ, बीजेपी का। कांग्रेस कमलनाथ जी कह रहे हैं 1500 रुपए वुमेन को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी कह रही है हम तो ऑलरेडी 1250 दे रहे हैं, 3000 कर देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे। तो क्यों आपके पोस्टर का क्यों जनता की विश्वास करेगी, बीजेपी का क्यों नहीं करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके रहती है, और वचन के पक्के कमलनाथ हैं एक तरफ और दूसरी तरफ घोषणावीर मामा है। तो झूठी घोषणाओं के कारण मामा ने मध्य प्रदेश को वाशिंगटन से अच्छी सड़कें अमेरिका तक में बदनाम कर रखा है। तो दोनों का कोई मैच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं तो 1500 रुपये हम हिमाचल प्रदेश में भी माताओं बहनों को दे रहे हैं, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा क्यों होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 450 में गैस का सिलेंडर दे रही है और उत्तराखंड वालों ने क्या बिगाड़ दिया है जो उनको 900 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है? बहुत बेसिक सा सवाल है मेरा कि महाराष्ट्र में क्यों 900 रुपये का गैस का सिलेंडर है? क्या वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है? तो ये जैसे मोदी जी एक दिन आए थे और भोपाल में कह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ है वहाँ पेट्रोल 100 रुपये से कम है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पूछ लीजिए, 109 रुपये पेट्रोल है। तो क्या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भाजपा की सरकार नहीं है? ये अलग बात है कि जनता ने जनादेश नहीं दिया था, लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार है। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने की है, और 21 सितंबर 2020 को इस भाजपा की सरकार ने विधानसभा में वो बात स्वीकारी है। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, उसमें केवल 300 रुपये पेंशन मिलती थी, उसमें भी 150 रुपये केंद्र का अंश था। उस पेंशन को कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो 3 महीनों में ही हमने उसे 600 कर दिया और हम उसे बढ़ाकर 1000 करने वाले थे। अब कमलनाथ जी आएंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसे 1200 करने वाले हैं। तो यहाँ हमने दिखाया, ये एक और बड़ी बात है, 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो शिवराज चौहान जी को 18 साल लाडली बहनों की याद नहीं आई? जब कोरोना में जनता संकट में थी तो सरकार ने कोई राहत नहीं दी। अब शिवराज चौहान की सत्ता संकट में है, भाजपा की सत्ता संकट में है, तो उन्हें लाडली बहनों की याद आ रही है, राहत याद आ रही है। इसका ये मतलब है कि शिवराज चौहान संकट में है, उनकी सरकार संकट में है, क्योंकि अगर राहत देना होता तो कोरोना में देते। वी आर जॉइंड बाय बीजेपी एमपी स्पोक्सपर्सन मिस्टर मिलन भार्गव। मिलन जी, पूरे
आप भोपाल में घूमे तो एक पोस्टर वॉर टाइप का लगता है, कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हैं, बोल रहे हैं 1500 रुपए वुमेन को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक तरफ पे मोदी जी के पोस्टर लगे हैं कि 1250 दे रहे हैं, 3000 कर देंगे और 450 में सिलेंडर देंगे। तो जनता जो है किसकी बातों पे ज्यादा विश्वास करे? वादे भी एक जैसे ही लग रहे हैं आप दोनों के। देखिए, दोनों में जो मूल अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर है, एक सरकार में है और एक विपक्ष में है। जो विपक्ष जो 15 माह पहले 2018 में चुनकर आया था, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर से जानती है। उन्होंने पहले भी वचन किए थे कि ये देंगे, युवाओं को बेरोजगारी 4000 भत्ता देंगे, लेकिन एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवाओं को ढोर चलाने और बैंड बजाने की जरूर ट्रेनिंग देने की कमलनाथ जी ने बात करी। किसानों को 2 लाख कर्ज माफ करने की कमलनाथ जी ने बात की थी, किसी भी एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। राहुल गांधी आए थे उस समय, इस समय उन्होंने प्रियंका गांधी जी को बुलाया और कहा कि नई घोषणाएं करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी की घोषणा हम पूरी नहीं कर पाए। और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार वो है जिसने सारी घोषणाओं को पूरा भी किया, और जो वचन हमने कहिए थे, जो घोषणाएं हमने की थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व आया माननीय अमित शाह जी के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है। ये हमारी दम है। हम पोस्टर में काम नहीं करते, हम धरातल पर काम करते हैं। वो पोस्टर में कर एक जरूर बहकाकर बहलाकर वोट हत्याना चाह रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है कि किसने काम किया, किसने नहीं किया।